আমুদরিয়া নিউজ, voice of the marginal. जो रियल दुनिया है उससे हम लोग काफी दूर हट गए। तो ये रीजन जो है ये ह्यूमन बीइंग को बैलेंस करने के लिए हेल्प करता है। आपका जो दुनिया आपका है वो भी रहना चाहिए, उसके साथ साथ आपका जो ये दुनिया जो नॉर्थ ईस्ट जो जानती है, जो ज्ञान यहाँ पे है, ये ज्ञान को हम लोग कैसे जोड़ेंगे, ये अगर चाहिए तो आपको नॉर्थ ईस्ट में आना चाहिए। यू हैव टू गो टू दिस इंस्टीट्यूशन, दिस ट्राइबल इंस्टीट्यूशन, बिकॉज दिस ट्राइबल इंस्टीट्यूशन आर बियॉन्ड फेथ। वो हिंदूज नहीं है, क्रिश्चियंस नहीं है, बुद्धिस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। उनका क्या है? उनका जो फेथ है दैट इज द फेथ ऑफ योर फेथ इज इन नेचर, प्रकृति में है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोडिविनिटी। यू फाइंड योर डिविनिटी इन द बायोलॉजिकल फोर्सेस. So this biodivinity is extremely important for the understanding of the rest of the world, because it is not about the knowledge over here, but it is about the practice that you stay with this tribal community there, where your currency is a mithun, your currency is a hornbill, your currency is the small snail which is there, your currency is the river which is there. Because now what has happened with time, we have started bottling water, whereas this is supposed to be an open resource for the entire world. So how can we sell that water which is supposed to be available for the entire world? So these are the questions we should now start understanding, and it is not from the Western perspective, from the consumer perspective, but it has to be from the Eastern perspective, that how are we living with this nature? ये प्रकृति के साथ हम अपना जीवन और जापन कैसे कर रहे हैं? ये बहुत ही एक मतलब इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जिसका हम लोगों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जो कि आपकी एंड ऑफ 1860s, बिगनिंग ऑफ 1900s तक इसकी चर्चा जो था वो थी। इसीलिए हम देखते हैं जब हम लोग ये रेनेसा को देखते हैं, स्टार्टिंग ऑल द वे फ्रॉम वी स्टार्टेड इन द ईस्ट एक्चुअली with Rabindranath Tagore, with Ishwar Chandra Vidyasagar, with Swami Vivekananda, with all the other scholars from the entire country who came together to the East. They came here for that knowledge. They connected physics, they connected mathematics, they connected medical support, they connected astronomy. Of the knowledge over here, प्रकृति का जो ज्ञान है उसको उन्होंने जोड़ा है, वो जो वेस्टर्न में 300 साल 400 साल से प्रैक्टिस हो रही थी। तो उसके साथ वो जोड़ के दे केम अप विद दिस द प्रॉपर प्रैक्टिस ऑफ इट। सो दिस प्रैक्टिस ऑफ इट स्टार्टिंग फ्रॉम कबीर दास जी, संत कबीर, टू लालन फकीर, starting from them up to the biggest of the scientists that we can talk of, the biggest of the doctors we can talk of, who have gone to the Western world and collaborated these two things for human happiness, which is the very important factor that made you stay over here from your 1.5 months planning to even past your past 6 months. You are still over here, and we still do not see signs that could take you away from here. No, in fact, I want to do a Northeast part 2 very soon after I conclude my journey. I understand that. Yes. In fact, so I'm a little curious now. अभी क्या हो रहा है ना, मतलब जो मैंने as a traveler जो मैंने देखा है नॉर्थ ईस्ट में एक्सपीरियंस किया है कि ये डेवलपमेंट के चक्कर में अभी we are promoting a lot of tourism to infuse quick money in the economy. राइट तो उसके एंड बिकॉज ऑफ दैट जो उसका जो रियल वेल्थ है वो एक्चुअली खत्म हो रहा है। मतलब इफ आई वांट टू गेट द रियल एसेंस ऑफ अरुणाचल फॉर एग्जांपल, इफ आई एम इन अ प्लेस कॉल्ड एज बोमडिला और तवांग, वहां पे वो जो रियल एसेंस है वो खत्म हो रहा है एक्चुअली। आई हैव टू गो एज फार एज जिमिथांग, है ना, एंड वहां पे फिर थोड़ा सा मुझे वहां का लोकल एसेंस मिलता है। तो आई थिंक इवन पीपल देयर आर गेटिंग डिस्कनेक्टेड फ्रॉम देयर रूट्स नाउ। You being a pioneer in sustainable tourism in this region, how do you think we leverage the tourism to maintain the serenity and the purity of this place and not destroy it? तो उसको कैसे किया जा सकता है? जयंत, इसका एक कारण है। देखिए, क्योंकि जो पर्यटन अभी हम लोग कर रहे हैं, जो टूरिज्म हम लोग कर रहे हैं, ये टूरिज्म जो है ये हम लोगों ने देखा है कि ये ट्रेन जर्नी, थॉमस कुक, और जब इंग्लिश लोग जब नाइट्स बन रहे थे तो फ्रांस ट्रैवल कर रहे थे, तो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, इस बीच का टूरिज्म जो डेवलप हुआ है, दैट टूरिज्म वाज मोर ऑफ अ टूरिज्म विच वाज टू सेटिस्फाई यू विद द आउटसाइड वर्ल्ड।
that you see. So that is the kind of tourism that we have now got into. So whenever we talk about tourism, we are talking about a different definition, because this definition matters a lot. तो ये जो नया डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन ये बोलती है कि आप प्लेस 1 से प्लेस 2 ट्रैवल करते हैं, तो उस बीच में आप 1 नाइट से लेकर 1 साल तक कहीं रहते हैं, तो कुछ इकोनॉमी आप स्पेंड करते हैं, तो वो टूरिज्म बनती है. तो ये डेफिनेशन जो है वो पहले से टूरिज्म को दुकानदारी बना दिया है. तो हमारे यहाँ पे जो ईस्टर्न रीजन में है, हमारे पास टूरिज्म सिर्फ मतलब ईस्टर्न रीजन नहीं, एंटायर इंडिया के पास जो टूरिज्म है वो मतलब विगत कितने साल से हम लोग नहीं जानते हैं, बिकॉज पिलग्रिमेज पहले से थी. And pilgrimage is probably the oldest form of tourism because it taught that how this spirituality and faith made you travel, because without travel your brain wouldn't evolve. So you needed to travel from your geography, from your comfort zone to another destination that you are supposed that your gurus told you that this was your destination for your pilgrimage. But more than your Tirth Sthan, it was very important to do your Tirth Yatra. So it was always said that आप कौन सा तीर्थ स्थान जा रहे हैं ये जरूरी नहीं था, आप तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं ये जरूरी था. तो ये यात्रा जो है ये जरूरी है कि आप अपने आप को, अभी हम लोग इसको डिफरेंट अलग अलग नाम से जानते हैं. कभी हम लोग इसको बोलते हैं स्लो ट्रैवल, कभी हम लोग इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल, कभी बोलते हैं सस्टेनेबल ट्रैवल, कभी इसको बोलते हैं इमर्सिव ट्रैवल. अभी हम लोग बहुत सारे इसके इंग्लिश जो ऑल्टरनेटिव्स हम लोग बोल रहे हैं. लेकिन आप जब पर्यटन की बात करते हैं तो परिया वर्ड कहाँ से आती है, क्योंकि आप महाराष्ट्र से हैं, आप देखेंगे कि परिया वर्ड उससे आती है कि जब कोई छोटा सा स्ट्रीम घूम घूम के जाती है उसको हम लोग परिया बोलते हैं. तो वो एक इकोसिस्टम क्रिएट करता है. तो पर्यटन जो है, पर्यटन मतलब वो इकोसिस्टम को क्रिएट करना है घूमने के थ्रू में. तो ये इसीलिए आपको पहले ही बताया, एज मच एज यू ट्रैवल आउटसाइड यू ट्रैवल इनसाइड. तो जितना हम बाहर में आप घूमेंगे और जितना इमर्स करना होगा वो आपके अंदर में इमर्शन होगा, तो वो जाके फाइनली पर्यटन बनता है. या टूरिज्म भी अगर देखेंगे, जब वेस्टर्नर्स हम लोगों ने ये वर्ड टूरिज्म लिया था, तूर्य, ये जब वर्ड लिया था उसके साथ इज्म जोड़ दिया. तो ये जब जोड़ दिया तो कोई भी इंडस्ट्री में जो है इज्म बोल के वर्ड नहीं, हम ये नहीं बोलते कि स्टीलिज्म, हाँ, हम इसको कभी नहीं बोलते हैं कि इज्म के साथ कंप्लीट नहीं करते. दैट मीन्स इट इज अ फिलॉसफी. एंड व्हाट डज दिस फिलॉसफी रिप्रेजेंट? ये फिलॉसफी इसको रिप्रेजेंट करती है कि टूरिज्म, अगर जैसे आप बुद्धिज्म को देखते हैं, किसी चीज को देखते हैं, उसमें मेन प्लेयर कौन होता है बुद्धिज्म में? बुद्धिस्ट होता है. तो इसी तरह टूरिज्म में जो मेन प्लेयर है वो टूरिस्ट होता है. जैसे आज आप इसका मेन प्लेयर है, तो आपकी जो सोच है वो कैसे बदल रही है? आपका ट्रैवल के थ्रू में बदल रहा है. तो इसकी दूसरी जो इसका जो दूसरा पैर है या दूसरा जो पिलर है वो है आपका ट्रैवल. पहले आप तो टूरिस्ट है, वो होना जरूरी है, आपका ट्रैवल होना जरूरी है. तीसरा क्या है? आप जाके कहाँ ठहर रहे हैं, मतलब आपका डेस्टिनेशन. वो तीसरा पैर जो है, तीसरा पिलर जो है ये है. और चौथा पिलर जो है, आप डेस्टिनेशन में या ट्रैवल में जब जा रहे हैं, आपका होस्ट कम्युनिटी कौन है. तो आपका टूरिस्ट हो गया, आपका ट्रैवल हो गया, आपका डेस्टिनेशन हो गया, और उसके साथ साथ में आपका जो होस्ट कम्युनिटी वो हो गया. तो ये चारों के बीच में चारों पिलर्स जो है ये टूरिज्म फिलॉसफी के मेन चारों पिलर्स है. जब तक ये गवर्नमेंट्स को, प्रैक्टिशनर्स को और टूरिस्ट को ये फिलॉसफी समझ में नहीं आता है, तब तक हम लोग ये बाहर वाले कंज्यूमर टूरिज्म में रहेंगे. दुकान की तरह चलाते, हाँ, दुकान की तरह चलाते रहेंगे. और इसमें हम लोग सिर्फ इकोनॉमी का बात नहीं करेंगे, इसमें हम लोग कभी इकोलॉजी का बात नहीं करते, हम लोग इसमें कभी इमोशन का बात नहीं करते, क्योंकि आप जब ट्रैवल करते हैं इट क्योर्स यू इमोशनली. हाँ, सो इफ इट क्योर्स यू इमोशनली, वेयर इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमोशन कमिंग इन? Why are you not talking about this experience and emotion? हम लोग जो इकोलॉजी क्रिएट हो रही है ये चारों पिलर के थ्रू में, वो इकोलॉजी का बात हम लोग नहीं कर रहे हैं. कि हम लोग जब ट्रैवल कर रहे हैं, जो हम लोग प्रकृति के अंदर रहते हैं, तो वो कितना इंटरटेन करते हैं उसको हम लोग कभी सोचते नहीं है. क्योंकि सबसे बड़ा पार्टनर तो वो है. क्योंकि आप अपना एक ज्योग्राफी, जो आप महाराष्ट्र में थे, वो ज्योग्राफी से जब ईस्टर्न रीजन में आ गए तो आपकी ज्योग्राफी बदल गई है. तो यहाँ की प्रकृति बदल गई है, तो उसका एक इम्पैक्ट आपके ऊपर आ रहा है. उसकी बात हम लोग नहीं करते हैं कि वो भी सबसे बड़ा पार्टनर है. चौथा जो ये लोग जो है यहाँ के रहने वाला, आपका होस्ट कम्युनिटी, बिकॉज एज अ साइक्लिस्ट, एज ए इको ट्रैवलर,
You have stayed with the community and you have stayed with the people. It is not always that you had access to hotels, lodges or homestays or so-called dukans. तो आपको काफी समय में आपको लोगों के साथ रहना पड़ा. तो आपका जो चर्चा है लोगों के साथ, that probably makes you stay a longer time over here. That probably gives you an urge that I should come back again over here. तो ये चर्चा आपने किया है बोल के आपने रियलाइज किया है. जो टूरिस्ट ये चर्चा नहीं करता है तो उसका जो ट्रैवल है, उसका यात्रा जो है, उसका टूरिज्म जो है वो इनकम्प्लीट रहती है. जो हम लोग टूरिज्म प्रैक्टिशनर्स है, स्टेक होल्डर्स है, जब ये चर्चा के अंदर हम लोग नहीं घुसते हैं तो हम लोग इनकम्प्लीट रहती है. जो गवर्नमेंट जो है डेस्टिनेशंस को जब इस चर्चा के अंदर नहीं लाती है तो वो गवर्नमेंट भी उनका जो विजन है वो बहुत इनकम्प्लीट रहती है. वो सोचते हैं कि हमने एक रास्ता बना दिया, एक अच्छा सा रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट बना दिया, अच्छे बस स्टैंड बना दिया, अच्छे फैसिलिटीज दे दिया, हमने लोगों को बोल दिया आप बड़े बड़े होटल्स में इन्वेस्ट कर दीजिए, 5 स्टार 4 स्टार दे दिया. शायद वो टूरिज्म है, लेकिन वो हैप्पीनेस नहीं लेके आती है. These are facilities. These are not tourism. These are facilities for your travel, for your destination, for your host community and for the tourist. But this doesn't give you happiness. The happiness finally comes from the geography, the people, your destination and your travel. So this has to be understood by the entire tourism industry on today's date, the governments on today's date. As tourists have to understand that, and the host community has to understand it. So when the host community changes their mind and thinks, if I built a homestay or a hotel or buy a gari, we are doing tourism. No, not at the cost of the practice, the spirituality, the connectivity of nature that they have earned through this generation, because that is the biggest asset for happiness and travel and tourism. So this needs to be understood and brought into contextual context when you talk about even WTO, that is United Nations World Tourism Organization, or WTTC, the World Travel and Tourism Council, or any of these associations that we talk of across the world. It is high time that we need to bring in these definitions and philosophies in travel. Otherwise, we will never be able to approach climate change. Climate change is not about using a paper bag, doing your waste management, not using an extra towel. These are small, small corrections or rituals that we want to achieve it. But these rituals are for what? It is for the greater goal of the tourism philosophy. So until and unless all of us do not understand this tourism philosophy, we will not be able to use tourism, for the betterment of this earth, for this world. राजदा, मैं एक्चुअली काफ़ी साल तक हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री से इन सम और अदर वे कनेक्टेड रहा हूँ, लेकिन आपने जिस तरह से टूरिज्म अभी समझाया है, वो लेवल में, वो डेप्थ में और वो मैच्योरिटी जो है उसके अंदर, वो थॉट के अंदर, वो लेवल में मैं अब भी समझा. मतलब इसके पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ना ही कहीं मैंने पढ़ा था, ना किसने मुझे समझाया था. आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि टूरिज्म इंडस्ट्री एज अ होल, उसके सारे जो कंपोनेंट्स है, एक टूरिस्ट जो है वो भी इसको समझे, एक जो टूरिस्ट गाइड है, जो एक टूरिस्ट एजेंसी है, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जो पॉलिसी बनाती है, जो पॉलिसी बनाता है, वो सारे अगर इस बेसिक फंडामेंटल फिलोसॉफी ऑफ टूरिज्म को समझे. पीपल लाइक यू जो लोग पढ़ा रहे हैं स्कूल्स कॉलेज में, आप जब मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट्स को ये मालूम होना चाहिए, this should be part of the curriculum to bring it into practice. ये बहुत जरूरी चीज है. हमारे सिंगर्स, आर्टिस्ट, सबको ये बात को आना चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट अबाउट यू एंड मी प्रैक्टिसिंग इट, अदरवाइज इट ऑलवेज रिमेन्स अ माइनॉरिटी. व्हेन वी टॉक अबाउट कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यू आर साइक्लिंग ऑल द वे, क्योंकि आप प्रकृति को बचाना चाहते हैं और सबको बोलना चाहते हैं कि प्रकृति बचाना चाहिए, लेकिन उसकी प्रैक्टिस कहाँ है वो हम लोग नहीं ला रहे. तो ये जरूरी है. अभी ये टाइम हो गया कि इट इज नॉट ओनली सोर्स फॉर अ माइनॉरिटी, बट इट इज ऑल्सो अ प्रैक्टिस फॉर द मासेस एज अ होल. बहुजन के लिए है ये प्रैक्टिस, जो है ये बहुजन के लिए है जी. जब तक बहुजन इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक ये सक्सेस नहीं होगा.
सो राजदा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो टूरिज्म का एक पूरा नया पर्सपेक्टिव मुझे जो दिया है, या इनफैक्ट ओरिजिनल पर्सपेक्टिव जो मुझे नहीं पता था या बहुत जन को नहीं पता है, वो जो आप मुझे दिया है, तो इनफैक्ट मैं भी इसकी आगे की मेरी पूरी जो यात्रा होगी यहाँ से अभी बिहार नेपाल बॉर्डर, यूपी बॉर्डर और नॉर्थ एंड देन सबसे रिच एरिया में जा रहे हैं, तेराई एरिया, जो तेराई इंडो नेपाल बॉर्डर का तेराई एरिया है, अब वन ऑफ द रिचेस्ट एरिया में जा रहे हैं, जो कि इस एस्पेक्ट से सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ रहती है, ग्रासलैंड लेकर साल फॉरेस्ट यहाँ पे है। मतलब ये सब मिलजुल के आप देखेंगे कि मतलब हियर इज वट एवर यू हैव एक्सपीरियंस्ड इज अ प्लेस वेयर यू कैन जहाँ पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी जब जाए तो मैं बताऊंगा, आप कम्युनिटीज के साथ और टाइम बिताइए, इनको और भी समझाइए कि ये सब एरिया में अभी तक टूरिज्म आई नहीं है। हाँ, अगर है भी तो बहुत कम है, कुछ चितवन बीच में आ गया, थोड़ा सा टूरिज्म यहाँ पे है, और एक दो जगह में जो है हम लोग देखते हैं वहां पे मेनली पिलग्रिमेज के हिसाब से टूरिज्म है। तो इवन पिलग्रिमेज का कॉन्टेक्स्ट जो है, जो हम लोगों ने पहले बात किया था, ये महाकुंभ में जब जाते हैं हम लोग सिर्फ रिचुअल्स में अटक जाते हैं। हम लोग सिर्फ चाहते हैं कि गंगा स्नान हमने किया कि नहीं, और उसके बाद हमने अपना मंत्र बोला कि नहीं। लेकिन जो गंगा स्नान हम लोग कर रहे हैं, वो गंगा के बारे में हम लोगों का सोच कितना है। जो इमर्स गंगा में कर रहे हैं, हम गंगा के प्रकृति में इमर्स कर रहे हैं या सिर्फ गंगा के पानी में इमर्स कर रहे हैं। तो हम तो अपने बाथरूम में भी इमर्स कर सकते थे, गंगा का 2 बाल्टी पानी ले आके। तो गंगा जल जो हम लोग अभी बोतल में लेके जाते हैं, सबको शुद्ध करते हैं, वो जल ले जाने का बात नहीं है। हर एक जल जो है वो गंगा है, और वो गंगा को साफ रखना, गंगा का जो प्रकृति है उसके साथ हम लोगों को जुड़ा रहना जरूरी है, क्योंकि वो रिवर जो है हमारे बेसिक्स को देती है। जो हम लोग रिवर साइड में रहते हैं, हमारा बेसिक खाना क्या है? राइस एंड फिश। फिश जो है वो फ्रीली अवेलेबल है पानी के अंदर। राइस के लिए पानी चाहिए, वेट कल्टीवेशन के लिए पानी चाहिए, तो वो पानी हमारे पास है। तो वो फ्री रिसोर्स जब है, तो उसका प्रैक्टिस को, उसका प्रकृति का प्रैक्टिस को हम लोग छोड़ के क्यों हम लोग मतलब अपना बिजनेस टारगेट, अपना करेंसी कमा के वही खरीदने जाते हैं। Exactly. तो ये बैलेंस ले आना जरूरी है। हम ये नहीं बोल रहे कि इसको हम रिनाउंसिएशन करते हैं। हाँ, ये नहीं बोल रहे कि आप साधु बन के इसको पूरा जो आपका जो है वो रिनाउंस कर दे, लेकिन आप ये बैलेंस को बरकरार रखें। राइट। और अनफॉर्चुनेटली ये जो करंट जो बिजनेस मॉडल्स और पूरी जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें हाउ टू क्रिएट स्कैर्सिटी इन द वर्ल्ड ऑफ अबंडेंस, और फिर उसमें से हाउ डज इट बेनिफिट द स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, एंड बाकी मेजॉरिटी जो है उनको कैसे, मतलब एक इट्स अ वेरी स्क्यूड वे ऑफ एजुकेटिंग पीपल। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वो लेवल में भी एक मेजर करेक्शन की जरूरत है, बट आई थिंक दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर डिस्कशन विच होपफुली वी विल। बट थैंक यू वेरी मच। आपने जो एक नया पूरा पैराडाइम दिया है मुझे एक हिंदू कुश रीजन के बारे में और टूरिज्म के बारे में, दैट विल एक्चुअली एनरिच एंड हेल्प मी एज आई ट्रैवल थ्रू दिस रीजन फर्दर, एंड even all my future travels, and I'm sure everybody who's listening to this. Yes. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद जयंत जी, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को जो यहाँ पे बैठे। Amudoria News. Voice of the Marginal.